beginning with Almighty's name, who's the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. Let's begin again with basic English, and this is going to be your lesson number 24. You know very well we are doing basic punctuations, and the purpose is quite evident to you. As I said before, written English may we need some expressions, right, in order to convey our message towards others. जबकि spoken English में ऐसा नहीं होता. Without punctuation, through our tone and selection of words and fluctuations in our language, we can convey the message very easily. रिटन इंग्लिश मुख्ताज होती है एक्सप्रेशन की, तो उसमें ये तमाम काम हमारे पंक्चुएशन साइंस करते हैं, राइट. सो यू नो वेरी वेल वी हैव बीन डूइंग some punctuation signs. Many of these are already done, so today we are going to do 3 more punctuation signs. Get ready. So by the end of today's lesson, viewers, you are going to be able to use 3 signs of punctuations correctly in your written speeches. So let's begin. It is ellipsis. Yes, the sign is 3 dots with same distance, right? So actually we use this sign for omission of the text. If we are going to miss something, अगर हम shortly कुछ लिखना चाह रहे हैं और pauses के साथ लिखना चाह रहे हैं, उसमें details को skip करना चाह रहे हैं, तो हम ellipsis को use करेंगे. And you can see there is an example at the bottom. My kitten, he's gone, sobbed the little girl. So the little girl is not telling each and every detail. She is missing and her speech is incomplete. So it is very, you can say, important for us that we have to use ellipsis in this way, right? अब कुछ और मैं मल्टीपल एग्जांपल्स आपके सामने लेके आऊँगी जिससे कि आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा ellipsis का यूजेज, राइट. देखिएगा, रिप्लेसमेंट फॉर ओमिटेड वर्ड्स. जहाँ पे हम अपने वर्ड्स को स्किप करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम एलिप्सिस यूज़ करेंगे. यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, व्हाट गुड फॉर्चून दैट द पीपल डोंट थिंक. यहाँ पे ओमिट किसको किया गया है? फॉर गवर्नमेंट्स, राइट. सो व्हेन एवर वी ट्राई टू ओमिट समथिंग वी हैव टू यूज़ एलिप्सिस. अब यहाँ पे देखें, पॉज का इफ़ेक्ट देने के लिए हम एलिप्सिस यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक वक्फ़ा लेने के लिए. सी द एग्जाम्पल, देन इट अपीयर्ड आ जीनी. इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की बजाय वी प्रेफर टू राइट a genie and we finishes our speech. So in this way ellipsis can be used. It can be used further for an unfinished thought, right? जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है बॉटम में, I know he deserved it, but अब हमने यहाँ पे अपनी बात को छोड़ दिया है. A trail off into silence definitely means ke half of the sentence is told and then we put the sign of ellipsis. And remain silent means we provide a way to the upcoming speech, but we leave that upcoming speech, right? So ये 4 usages हैं viewers. इसी तरह से आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. देखें कि अब जब हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरह से किस किस्म की इंफॉर्मेशन को हम मिस करते हैं, राइट. लेट मी रीड द कंप्लीट स्पीच फर्स्ट and then I will be using the ellipsis. What a beautiful garden it was with lots of flowers, trees, bushes, etc. Such a beautiful, or we can say such a wonderful place. But if we use ellipsis, the speech will be looking like this. What a beautiful garden it was. Such a wonderful place. बात वही है. The beauty is explained in the first speech by using different nouns, right? And here we are making it concise, making it very smart and short. एक और बात viewers याद रखें ellipsis के बारे में, वो क्या है कि इसका साइन हरगिज़ ये मत आप यूज़ करें कि इसमें कुछ डॉट्स को कम या ज़्यादा कर दें. There should be 3 dots with same distance, right? So इसको लिखने में आपने कभी भी मिस्टेक नहीं करनी. Now let's come to words parenthesis, जिसको कि सिंपल इंग्लिश में आप सिंपली, जैसे मैथमेटिक्स में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो हम इनको ब्रैकेट्स कहते हैं. स्मॉल ब्रैकेट्स कह सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स कह सकते हैं, राइट.
सो ये कब यूज़ होती है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। जब हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहें अपनी रिटन स्पीच में। देखिए नीचे एग्जांपल, आई वॉन इज़ कमिंग टू द आर्ट शो, ये एंड ही इज़ एक्साइटेड टू सी योर वर्क, राइट। इस एग्जांपल से भी बेहतर एग्जांपल्स मैं आपको देने जा रही हूँ। यू हैव टू पॉन्डर ओवर, यू हैव टू लिसन टू मी एंड वॉच द एग्जांपल्स. To provide further explanation over the given speech, we can use parenthesis. In small brackets को हम use कर सकते हैं. Example देखें, he lived in Khartoum, capital of Sudan. Khartoum is a city, right? It's the capital of Sudan. ये additional information है regarding this country. Next is to provide an afterthought. एक afterthought के लिए भी हम इसको use कर सकते हैं. He lived in Khartoum for a year, so I was told. Right. Second thought के लिए, to provide a plural option means all these things are something extra added to the sentence, right viewers? Your guest must leave by midnight. Guest might be one and it can be more. इस वजह से ब्रैकेट में parenthesis में हमने s लिखा है, the possibility, right? So anything which is explained additionally within the parenthesis, we will say दिस इज़ द यूजेज ऑफ पैरेंथेसिस, कि हम ब्रैकेट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसी पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो स्पीच के अंदर है. लेट मी फर्दर क्लियर इट. जॉर्ज वॉशिंगटन, पैरेंथेसिस, द फर्स्ट अमेरिकन प्रेजिडेंट, was born in 1732. I went to the cinema to meet James. Who's James? My elder brother. Next, I love strawberries, but I am not keen on blackberries. तो additionally आई ऑल्सो लाइक रास्पबेरीज, तो यहाँ पे इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट व्यूअर्स. एक और तरह की ब्रैकेट्स भी हैं जिनको कि हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हैं, राइट. सो वाई डू वी यूज़ इट? इसका इस्तेमाल ये होता है फॉर एडिटिंग. याद रखिए जो पैरेंथेसिस है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगी स्पीच के बारे में, और ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमें एडिटिंग के काम आएगी, राइट. एडिटिंग कैसे हो सकती है? सी, द मैन स्टेटेड दैट ही नेवर वॉन्ट्स टू सी देम से मुराद कौन है? हिज नेबर्स अगेन, राइट. सो एडिटिंग इज़ द मेन पॉइंट फॉर द यूजेज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे कुछ और मिसालें भी हैं कि व्यूअर्स, वी कैन से यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स व्हेन वी वांट टू मॉडिफाई अनदर पर्सन's वर्ड्स, right? We want to make it clear that the modification has been made by us. किसी के वर्ड्स को जब हम एज इट इज़ लिखें और उसमें कुछ अपनी तरफ से बताना चाहें तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, राइट. नॉट बाय द ओरिजिनल राइटर, जो कि ओरिजिनल राइटर ने ना की हों, लेकिन हम उसकी जगह कुछ ऐड करें, तो ये एडिटिंग के ही मानों में आएगा. स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर एडिटिंग. ये किस लिए यूज़ होता है? टू ऐड क्लैरिफिकेशन टू द स्पीच, ताकि वो फर्दर क्लियर हो जाए. देखिए, द विटनेस सेड ही हिट मी. ही द पुलिस मैन, ही से मुराद कौन है? द पुलिस मैन. मतलब जिस किसी ने ये लिखा है उसने ही हिट मी लिखा है. ये हम अपने तौर पे स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हुए उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए पर्सन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, सो दैट द रीडर मे बी वेरी मच क्लियर इन हिज हेड, राइट. कुछ मिसिंग वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं हम बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट. यू कैन सी द एग्जांपल. इसी तरह से कहीं पे हमें एम्फसिस ऐड करना है, मतलब बीइंग एन एडिटर, बीइंग अ यू कैन से प्रूफ रीडर आप कह सकते हैं, तो उसमें हम ब्रैकेट यूज़ करके अपने तौर पे स्ट्रेस को बता सकते हैं, राइट. इसी तरह से लास्ट वन देखिएगा, टू मॉडिफाई अ डायरेक्ट कोटेशन. देखिए एग्जांपल है, ही लव्स ड्राइविंग. द ओरिजिनल वर्ड्स वर आई लव ड्राइविंग, राइट. तो हमने इसको ही लव्स किया, ही लव्स ड्राइविंग, तो हमने इसमें अब ब्रैकेट के अंदर चूँकि ही के साथ एस और यस यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, दैट्स वाई यहाँ पे ये हमने मॉडिफाई किया. सो याद रखें कि जहाँ जहाँ पे हम अपना टच देंगे किसी रिटन स्पीच में, उसमें एज इट इज़ की बजाय ब्रैकेट्स के अंदर अपना एम्फेसिस, अपनी तरफ से कुछ एडिट
की गई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, जैसे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अभी इस स्लाइड में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वी कैन यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट व्यूअर्स। अब देखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ कोटेशन, जैसे कि यू कांट टेक इट, इट से मुराद क्या है, योर मनी विद यू। यहाँ पे ये जो येलो कलर में लिखा गया है, इट इज़ एक्सप्लेन्ड, राइट। सो इट को एक्सप्लेन किया गया है इसके थ्रू। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में इसको रिप्लेस किया है इट ने। थर्ड में देखिए, विद 3 डॉट्स दैट इज़ एलिप्सिस टू शो ओमिटेड टेक्स्ट, इसको हम ब्रैकेट में लिख के एलिप्सिस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉज लिया गया है, राइट, कुछ ओमिट कर दिया गया है, उसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, SIC सिक, ये हम कब यूज़ करते हैं कि जब हम किसी की रिटन स्पीच को एग्जैक्टली सेम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर हो और उसको हम बताना चाहें। तो अगेन मैं कहूँगी व्यूअर्स, स्क्वायर ब्रैकेट के इस्तेमाल में आप एडिटिंग को याद रखें कि हम एडिटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को रीड करना, री राइट करना, री करेक्ट करना, राइट। सो दोज आर माई प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल्स PLES वाला आएगा, राइट, मीन्स द रूल्स। होप यू गॉट दैट, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, parenthesis is mostly used for additional information, whereas square brackets are used to edit the quotations in many ways, the way I shared with you. That's all for today. Thanks for watching. Hope you will like the video. If you want more videos from my side, try to subscribe the channel. Keep sharing these lessons with others for their English improvements. Till the very next lesson, viewers, take care of yourself. Allah Hafiz.